तशरीफ लाएं, ईदगाह के ऊपरी हिस्से में आ जाएं और इधर उधर बैठने की बजाय मुनासिब और बेहतर यही रहेगा कि आप आगे की सफ़ों को पूर्ण करके बैठें। साजगार है, आपसे गुजारिश है आप जल्द अज जल्द ईदगाह के ऊपरी हिस्से में तशरीफ लाएं और आगे की सफ़ों को दुरुस्त करके बैठ जाएं। ठीक 10 बजे नमाज ईद उल अज़हा की जमात खड़ी होगी। हज़रात गिरामी, ईद उल अज़हा ये हम सब के लिए सादत की बात है कि हम यहाँ ईद उल अज़हा इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम्द सब मिलकर बात जब बुलंद पढ़े, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरात, हमारे दरमियान में शहजादे आशिकी दस्तगीर हुजूर तनवीर मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी साहब किबला सदर जमात अहले सुन्नत कर्नाटका तशरीफ लाए हैं। मैं जमात अहले सुन्नत की जानिब से तमाम शहरियान बीजापुर की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसे में बुला लें ताकि नमाज ईद उल अज़हा वक्त पर अदा की जाए। ये ईद उल अज़हा की वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ी जाती है। नियत आप हजरात को पता है। इस तरह से भी आप दिल में इरादा कर लें कि पढ़ता हूँ मैं ईद उल अज़हा की 2 रकात वाजिब नमाज माँ 6 ज़ायद तकबीरों के, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। इस तरह से आप अपनी नियत कर लें। और जैसे ही नमाज होगी फ़र्ज नमाज, तो आप सबसे गुजारिश है कि बुलंद आवाज़ में तकबीर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इज्तिमाइयत का मुजाहरा करेंगे और बुलंद आवाज़ से तकबीर का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लें। फिर एक मरतबा जो नीचे हैं उनसे गुजारिश है कि वो पहले ऊपर की सफ़ें पूरी कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम व रहमतुन लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लिमन हमीदा। अल्लाह
اللہ اکبر اللہ اکبر ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھیے الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان لله وانا الیہ راجعون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی العالمین جميعا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم خصوصاً علی ابی بکر صدیق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و علی ابن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و علی سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا و علی سیدنا امام الحسن و علی سیدنا امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد والی وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بالخصوص مولا عالم اسلام پر کرم فرما، اہل غزہ اہل فلسطین پر کرم فرما، اسلامیان ہند پر کرم فرما، وطن عزیز میں رہنے بسنے والے تمام فرزندان توحید کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہوں، ہماری درگاہوں اور ہمارے قبرستانوں کی، ہمارے عاشور خانوں کی، ہماری عبادت گاہوں کی اور ہماری آبادیوں کی مولا حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی وطن عزیز ہندوستان پر کرم فرما، ہمارے دیش کے جھنڈے کو بلندی عطا فرما، ہمارے دیش کے سرحدوں کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی ہم سب میں بھائی چارہ محبت اخوت عطا فرما مولا تبارک و تعالی ہم سب کی دعائیں حضور علیہ السلام کی صدقے و طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تبارک و تعالی جو زندہ ہیں ان پر کرم فرما، جو انتقال کر گئے ان پر کرم فرما، بالخصوص مولا تبارک و تعالی ہمارے درمیان ہر سال الحاج بندہ نواز سانگلیکر صاحب موجود ہوا کرتے تھے، ان کی جانب سے بڑی خدمات رہیں مولا تبارک و تعالی حاج صاحب کا انتقال ہوا ہے، اے رب ذوالجلال والاکرام حاج صاحب کی مغفرت فرما مولا تبارک و تعالی ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرما مولا تبارک و تعالی ان کے برزخی درجات بلند فرما مولا انہیں جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرما، شہدائے غزہ کی شہادت کو قبول فرما، شہدائے فلسطین کی شہادت کو قبول فرما، عالم اسلام شہادت کو قبول فرما، قبلہ اول کو آزادی عطا فرما مولا تبارک و تعالی ان کے صدقے و طفیل میں اے رب ذوالجلال والاکرام ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق عرش محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
तमाम बिरादरान इस्लाम को और अहलियान वतन को बकरीद की पुरखुलूस मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। आज का दिन बड़ी अज़मतों वाला दिन है और इस दिन को दीन इस्लाम में क़ुरबानी का दिन कहा जाता है और ये दिन ईद क़ुरबान का दिन भी है। आज के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा किया जाता है और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए मखसूस जानवर को आज के दिन अल्लाह की रज़ा की खातिर क़ुरबान किया जाता है। क़ुरबानी के अज़ीम पैगाम में बिलाशुबा ये पैगाम अल्लाह के बंदों को दिया गया है कि हमें शैतानी वसाविस की क़ुरबानी देनी चाहिए, अपनी अना की क़ुरबानी अल्लाह की बारगाह में पेश करना चाहिए, अपने नफ्स को क़ुरबान करना चाहिए, यानी नफ्स अम्मारा को, और गुरूर तकब्बुर जैसे ये ख़बाइस है, इन ख़बाइस को अल्लाह की रज़ा की खातिर हमें अपने वजूद से मिटाना चाहिए। ये तालीमात हमें इस क़ुरबानी के अज़ीम फ़लसफ़े के ज़रिया दी गई हैं और ये तालीमात आलम इस्लाम के हवाले से बड़ी अहमियत रखती हैं। तो सारी दुनिया के मुसलमान मिलकर आज के दिन जो जानवर क़ुरबान करते हैं, जानवर की क़ुरबानी दरअसल अल्लाह की रज़ा की खातिर है और ये ऐलान किया जाता है कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर हर शैतानी वसवसे को क़ुरबान करते रहेंगे। और इस वक्त लाखों की तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद मनासिक हज अदा करने में लगे हुए हैं और पूरी दुनिया भर से मुसलमानों का एक बड़ा इज्तिमा, जो दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा जिसे कहते हैं, वो हज का इज्तिमा है, जो इस वक्त मक्का मुकर्रमा में मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में मुनक़्क़िद होता है। उस इज्तिमा के ज़रिया पूरी दुनिया को अमन व अमान का पैगाम दिया जाता है, भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, उख़्वत और अपनायत का पैगाम दिया जाता है, इंसानियत नवाज़ी का पैगाम दिया जाता है। और यही कुरान मजीद की तालीमात हैं, यही अल्लाह के रसूल की तालीमात है। हमें इस तरफ खुसूसी तवज्जो करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हज के मौके पर वहदत इस्लामी का जो अज़ीम तसव्वुर पेश किया गया है, हमें उसे हमेशा मलहूज़ रखना चाहिए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जज्बे को फ़रोग़ देना चाहिए, नीयतों में इखलास, सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए और कदम कदम पर हमें अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करने का मुज़ाहरा करना चाहिए। इस मौके पर मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप एक बेहतरीन मुसलमान बने, बेहतरीन उम्मती बने, बल्कि बहुत ही मैं फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि हमें एक बेहतरीन हिंदुस्तानी मुसलमान बनना है। हम इंशाअल्लाह सब मिलकर कोशिश करेंगे कि हम बेहतरीन हिंदुस्तानी मुसलमान बने। फिर एक मरतबा मैं आप सबको बकरीद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बिरादर इस्लाम को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही साथ मैं यही कहूँगा, जिस तरह आज जानवरों की कुर्बानी दी जा रही है, उसी तरह अपने असद को और अपने गुनाहों की भी आप कुर्बानी दीजिए और अपनों से मोहब्बत कीजिए। जो आपसे नाराज़ हैं आज ईद के मौके पर, उसकी भी कुर्बानी देकर अपनी नाराज़गी को दूर करते हुए उन तमाम अपने भाई बहनों को जाकर गले मिलिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमेशा आप खुश रहे, कामयाब रहे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो कुर्बानी आज दी जा रही है, जो गोश्त बांटा जाएगा, 100 लोगों को बांटने से बेहतर है कि आप 10 लोगों को ही बांटिए, मगर उन गरीबों को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज तमाम लोगों को बकरीद ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज हमें दखनी ईदगाह में हमारे तनवीर पीरान साहिब यहाँ नमाज पढ़ाई, पूरे तमाम लोग आए थे और पूरे ದೇಶವಾಸಿयों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ಇವತ್ತು ನಮಾಜನ್ನು ದಕ್ನಿ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಪೀರ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು
ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಈದ್ ಮುಬಾರಕನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. तो तारीखी शहर बीजापुर में शाही दखनी ईदगाह में ईद उल अदा की नमाज हज़रत सैयद तनवीर पीरा हाशमी साहब किल्ला ने जो है इसके यहाँ पर जो है अदा की गई और उन्होंने खिताबत इमामत और खिताबत की ज़िम्मेदारी आपने संभाली और इस मौके पर उन्होंने एक अच्छा पैगाम भी दिया और उन्होंने जो है ख़ास कर ख़ास खुसूसी दुआ भी की और इसके अलावा तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबादी भी दी. तो हम भी अपनी तरफ से बी न्यूज़ नेशन की ओर से तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारक हो. कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर.